موجود ہیں یہاں پر؟ آئیے ہم زوردار نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہمارا یسوع یہاں پر موجود ہے کیونکہ اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ کتنے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اپنے ہاتھ بلند کریں، بلند کریں اور بلند، آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے کیونکہ آپ بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ بادشاہی کے فرزند زور آور لوگ ہوتے ہیں، ہم زور آور کے پیرو ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہی ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ کتنے ہیں جو آج خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ سو ہم نہایت سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سنیں گے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ سو ضرورت ہے کہ ہم جتنے آج رات یہاں پر موجود ہیں خدا کے کلام کو عظمت دیں کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو عظمت دی ہے۔ جب خدا اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے تو ہم ناچیز لوگ کیوں نہیں خدا کے کلام کو عظمت دے سکتے؟ ہاللیلویا۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 7واں باب اور 21ویں آیت میں خداوند کے حضور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں آج رات جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ جتنے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک میری بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ کس کی مرضی پر؟ آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں، وہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہے اور کوئی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہے۔ یہ فیصلہ، یہ کلام کی آیت اٹل ہے اور خدا کے کلام میں جو یہ آیت مرقوم ہے میرے عزیزوں ویسا ہی رد عمل اس آیت کے وسیلہ سے ہونے کو ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جتنے مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک میری بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، آسمان کی بادشاہی ایک حقیقت ہے۔ آسمان کی بادشاہی ایک حقیقت ہے مگر وہ جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی آسمانی بادشاہی کا وارث ہوگا، وہی آسمانی بادشاہی کو حاصل کرے گا جو آسمانی خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور خدا کی مرضی آج شام آج رات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو فالو کریں، آپ اس کے احکام کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تب خدا کی مرضی آپ کی زندگیوں کے اندر پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی مرضی یسوع مسیح کو ماننے کے سبب سے آپ کی زندگیوں کے اندر پوری ہوتی ہے۔
तब आप खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं, अदरवाइज आप खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हैं। बाइबल इसीलिए कहती है कि जितने ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक, क्योंकि खुदा के मानने वालों को, खुदा के अहकाम को फॉलो करने वाले खुदा की बादशाही में जाएंगे, मगर जो अपनी जुबान से ए खुदावन पुकारते हैं, मगर बाइबल कहती है जिनके दिल खुदा से दूर हैं वो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आपका खुदा के साथ दिल लगाना और खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना नहायत जरूरी है ताकि खुदा की बादशाही के वारिस बने। और आज शाम, आज रात हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि जिंदा खुदा की मर्जी आज रात हमारे लिए क्या है, हम क्या करें कि जिंदा खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। आइए खुदा के कलाम में से आयत हम देखेंगे, और खुदा के कलाम में मेरे साथ निकालिए मत्ती ही की अंजील और उसका 17वां बाब, मत्ती की अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। मेरे अजीजों, ये खुदा की मर्जी है आपका आसमान की बादशाही में जाना, और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुदा की मर्जी यह है कि आप यीशु मसीह को सुने, आप यीशु मसीह को फॉलो करें, आप यीशु मसीह के पैगाम पर कान लगाएं, आप यीशु मसीह की हिकमत को जानें, आप यीशु मसीह के कलाम को जानें जो आज रात खुदा के कलाम में से आप सुनने वाले हैं। क्योंकि वो कहता है जिंदगी मैं हूं, वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, वो कहता है दरवाजा मैं हूं, और वो ये कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आप यीशु मसीह के बगैर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? कौन है जो मसीह के बगैर खुदा की बादशाही में जा सकता है? भाई दरवाजे जो नाम के ही अंदर जाना है ना, तो दरवाजा कौन है बादशाही का? यीशु मसीह ने कहा है मैं दरवाजा हूं, वो आसमानी बादशाही का दरवाजा है। यीशु ही वो हकीकत है जो आसमान की बादशाही में आपको दाखिल कर सकता है। हालेलुया। सो आज दौरे हाजिरा के अंदर हम देखेंगे क्या हम हकीकत में खुदा की बादशाही के वारिस हैं? क्या हमारी जिंदगी खुदा की बादशाही के लिए तैयार है? क्या हम इस काबिल हो गए हैं कि आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हुए आसमानी बादशाही में दाखिल हो? सुनिए, दौरे हाजिरा के अंदर हम कलीसियाओं पर ध्यान करें, हम उम्मते मसीहा पर ध्यान करें, तो हकीकत में ऐ खुदावन कहने वाले ज्यादा लोग मौजूद हैं, मगर जो हकीकत में ऐ खुदावन कहते और मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं कम है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में आया है कि आसमानी बादशाह में कितने दाखिल होंगे? कितने? बहुत थोड़े हैं जो आसमानी बादशाही में दाखिल हो। इसलिए बाइबल कहती है कि जितने मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो आसमानी
बाप की मर्जी को पूरा करते हैं और बाप की मर्जी ये है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें, हम उस जिंदगी के दरिया की तरफ जाएं, हम उस राह हक और जिंदगी को अपनी जिंदगी दें, हम उसके कलाम को फॉलो करें, उसके अहकाम को फॉलो करें। और आज मैं नहायत दुख के साथ आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि हम खुदा के बेटे के फॉलो कम और मिशनों के फॉलो ज्यादा हो चुके हैं। और ये हकीकत है। कितने मेरे साथ मुत्फिक है इस बात में? हम मिशनों के साथ ज्यादा संजीदा और खुदा के बेटे के साथ संजीदा नहीं है। हम मिशनों को अपना सरपरस्त बना लेते हैं, हम बाइबल में से एक आयत सुनते हैं और पूरी बाइबल को उसके जेर कर देते हैं। हम बाइबल में से अपने मकसद के लिए याद चुन लेते हैं, मगर सारी बाइबल और जितना खुदा का कलाम है उसे रद्द करके आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, बाइबल कहती है, खुदा ये फरमाता है कि मैं ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जब खुदा ये ऑर्डर दे रहा है, जब खुदा ये बयान कर रहा है कि यीशु मसीह को फॉलो करो, मेरे बेटे की आवाज को सुनो, तो जरूरत है कि मिशनों से ज्यादा, तंजीमों से ज्यादा खुदा के बेटे की आवाज को सुनना है, जिसके वसीले से हम खुदा की बादशाही के फरजान बन सकते हैं। हालेलुया। हम खुदा की बादशाही में जाने के लिए यीशु मसीह के पैरों होना नहायत जरूरी है। यीशु मसीह के उन अल्फाजों को अपनी जिंदगी में लेना नहायत मेरे अजीजों जरूरी है। और हम मुख्तलिफ चर्चिस के अंदर गए, जाते भी हैं और देखते भी हैं और सुनते भी हैं। हर एक डिनोमिनेशन अपने अपने अकीदा के मुआफिक चल रहे हैं। और किसी से अगर बात की जाए तो ये कहते हैं जी हमारा और आपका ईमान नहीं मिलता। सुनिए, ईमान बाइबल के मुताबिक एक ही है। अगर आप मुख्तलिफ ईमानों के अंदर बट चुके हैं, अगर आपके ईमान मुख्तलिफ हो चुके हैं, तो सुनिए, आप वही लोग हैं जिनके बारे में लिखा है कि जितने मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक मेरी बात से में दाखिल ना होगा, मगर वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और बाप की मर्जी ये है कि उसके बेटे को फॉलो किया जाए। और ये अजीब खुशखबरी का कलाम हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई आपको खुदा के हुजूर लेकर नहीं जा सकता। वही एक राह है, वही एक रास्ता है, वही दरवाजा है, वही गुजरने की राह है, वही सिराते मुस्तकीम है, वही आपको जिंदगी की राह दिखाता और खुदा के हुजूर में लेकर के जाता है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से एक आयत देखेंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से देखिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 27वां 10वां बाब। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए पढ़ने को हूँ। हालेलुया। उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ने हुआ हूँ। यूँ लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और बाइबल कहती है और खुदावंद फरमाता है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से अलगाह करते हैं, अपनी जुबान से फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और यीशु मसीह की भेड़ें, आप कौन हैं? अब यीशु मसीह की भेड़ें हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। जब वो चरवाहा है तो उसकी भेड़ें भी हैं और वो भेड़ें आप लोग हो और वो भेड़
मैं हूँ। और हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं हम खुदावंद की भेड़ें हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदावंद कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर ध्यान कीजिए अपनी जिंदगी पर, आज शाम आज रात अपने आप को परखिए, क्या हम मसीह की भेड़ें हैं? अगर हम मसीह की भेड़ें नहीं हैं तो आज नहायत दुख और गर्व की बात है कि हम उसकी बादशाही से खारिज लोग हैं। अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो जरूर है कि मसीह के पैरों हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, मसीह फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब देखते हैं एक चरवाहे को, आप देखते हैं भेड़ों के चराने वाले को कितने जानते हैं? देखे आप लोगों ने, अब सब गांव के रहने वाले लोग हैं और हम जानते हैं। और चरवाहा क्या करता है? चरवाहे का आप चाल चलन देखते हैं, वो अपने हाथ में आशा लेकर क्या करता है? आगे आगे चलता है। और भेड़ें जो है अपने चरवाहे के पीछे पीछे जाती हैं, यानी उसके कदमों पर वो जाती हैं। और इसी तरह हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और उसने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलते, और मैं उन्हें क्या करता हूं? हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सुनिए, कोई डिनोमिनेशन, कोई फिरका, कोई तंजीम आपको मसीह के हाथ से छीन नहीं सकती। जब तक आप मसीह के पैरों हैं कोई आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह के फॉलोअर हैं। और आज जरूरी है कि आप यीशु मसीह के फॉलोअर बने, आप यीशु मसीह के गवाह बने। बाइबल में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? उसके पास गवाही है। और वो गवाही क्या है? गवाही ये है कि यीशु मसीह नासरी हमारी नजात है, यीशु मसीह नासरी हमारी बहाली है, जो आसमान पर हमें लेकर जाता है, जो एक ही रास्ता है और खुदा बाप के हसूर में उसकी बादशाही में हमें लेकर जाता है। आप बादशाही के फरजंद होने के लिए बुलाए गए हैं। किसके लिए बुलाए गए हैं? बादशाही के फरजंद होने के लिए। और जरूर है कि हम अपनी जिंदगी में मसीह को फॉलो करें। सुनिए, डिनोमिनेशन मिशंस आपको खुदा की बादशाही में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इन सब के अकीदे फर्क है। एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह है। और उसने अपना कलाम, उसने अपने अहकाम हमें बख्श दिए हैं ताकि उन्हें फॉलो करते हुए खुदा के हसूर में जाने वाले। हालेलुया! कितने मेरे साथ मुत्फिक हैं? मसीह के फॉलो बादशाही के वारिस हैं, मसीह के पैरों बादशाही के वारिस। कलीसिया सुनो, आप अगर मसीह के फॉलो हो तो आपको खुदा की बादशाही में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप मसीह के लोग हैं, अगर आप उसकी भेड़ें हैं तो उसके पीछे पीछे चलना आपके लिए नहायत जरूरी है। और खुदावंद यीशु कहता, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। किसी की जरूरत नहीं है कि आपको आपकी जगह से हिला सके। शर्त यह है कि आप फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हो, आप यीशु मसीह के फॉलोअर हो, आप यीशु मसीह के पैरों हो, आप उसके अहकाम जो उसके मुंह से लफ्ज सादर हुए हैं कलाम खुदा में, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार दो। सुनो, आओ, निकलो मिशनों से बाहर, निकलो तंजीमों से बाहर, खुदा के कलाम को, मसीह की जिंदगी को फॉलो करो। फिर आप उसकी नजात देखोगे, फिर आप रिहाई देखोगे और उसकी बादशाही में दाखिल होने का मकदूर हासिल करोगे। हालेलुया! सो जरूरत है कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हो जाएं, क्योंकि बाप की मर्जी यही है कि उसके बेटे को फॉलो किया जाए, उसके बेटे को फॉलो किया जाए, उसके अहकाम को माना जाए। क्योंकि खुदा ने बहुत से अपने नबी इस दुनिया में भेजे। अब जानते हैं, मसीह से पहले बहुत सारे नबी इस दुनिया में आए, बहुत सारे, मगर यीशु मसीह वो वाहिद रास्ता है। वो खुदा के अहकाम,
लोगों को देते थे, खुदा कलाम करता था, वो बताते थे। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। वो फक्की फरीसी आप जानते हो, कहते थे कि ये साहबे इख्तियार है, इसके पास ये इल्म कहाँ से आया? वो नहीं जानते थे कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का मुजस्सम करदा है जो इस दुनिया में आ गया और हमारी रहाई के लिए आया है, हमारी नजात के लिए आया है, ताकि हम इसे फॉलो करें और अबदी जिंदगी के वारिस हों। हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखेंगे। मोबाइल की लाइट को मुझे दे दो। थैंक यू। हालेलुया, प्रेस। हम खुदा के कलाम में से देखें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, यीशु मसीह के मुंह से सादर किए गए अल्फाज हैं। वो कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि नूर तारीकी में चमकता है। अंधेरा हो गया, बिजली चले गई, आपको नजर नहीं आ रहा, नूर तारीकी में चमकता है, वही उजाला करता है, वही राह दिखाता है, वही राह हक और जिंदगी है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। क्या लिखा है? दोहराइए मेरे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु ने कहा है मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह वो नूर है जो आपको खुदा की बादशाही का राह दिखाता है। यीशु मसीह वो नूर है जो आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हुए